إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بڑے گناہوں سے بچتے رہیں جن سے اللہ رب العزت کی ذات نے منع کیا ہے. اگر ان کبائر گناہوں سے ہم بچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو میں مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کروں گا. عزت کی جگہ مراد جنت الفردوس، جنت بھی ہو سکتی ہے، جنت الفردوس بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی جنت جو اللہ بندے کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، تمہیداً ایک مثال سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. کسان کو دیکھ لیں، کھیت میں ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے. یہ عمل کسان کا 3 سے 4 دن کا ہوتا ہے. لیکن وہ اپنی اس جو فصل لگائی ہے اس فصل کی مسلسل نگرانی کرتا ہے. کوئی فصل 4 مہینے کی، کوئی 5 مہینے کی، کوئی 6 مہینے کی، کوئی 3 مہینے کی. جب تک وہ فصل تیار نہیں ہوتی وہ مسلسل اس فصل کی نگہبانی کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے اس فصل کی پرندوں سے، چپاہوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے. حتیٰ کہ جب فصل تیار ہونے کے قریب ہوتی ہے پھر اس پر سپرے بھی وہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، کسان اگر اپنی فصل کی حفاظت نہیں کرے گا تو جو مدت ہے اس فصل کی 6 ماہ کے بعد وہ فصل تیار حاصل نہیں کر پائے گا. اگر اس نے حفاظت ہی نہیں کی اس کی فصل برباد ہو جائے گی. اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، چپاہے کھا جائیں گے، پرندے کھا جائیں گے. میرے بھائیوں، بیعین ہی بندہ جب نیکی کرتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ میرے بھائیوں، نماز کا دورانیہ 10 سے 20 منٹ کا ہے،
रोजे का दुरानिया 10 से 20 घंटे का है, हज का दुरानिया 3 दिन का है, उम्रा 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। मेरे भाइयों, बंदा जब नेकी कर लेता है, अब बंदे पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि इस नेकी की हिफाजत करनी है। कब तक उसने इस नेकी की हिफाजत करनी है? जब तक कि उसके जिस्म के अंदर सांस बाकी है। हिफाजत करनी है किससे मेरे भाइयों? नेकी का दुश्मन कौन? नेकियों को बर्बाद करने वाला कौन? किससे नेकियों की हिफाजत करनी है? शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। याद रखिए, शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी शैतान को दुश्मन समझो। हिफाजत करनी है शैतान से, अपनी नेकियां बर्बाद होने से बचानी है शैतान से, ये बर्बाद ना कर दे। कैसा दुश्मन है ये? बंदे का कैसा दुश्मन है? बंदे के मिजाज के मुताबिक उस पर हमलावर होता है। दुनियादार है तो दुनिया की मिसालें लेकर सामने आएगा, दीनदार है तो दीन के हवाले से मिसालें लेकर उसके सामने आएगा, उसकी नेकियां बर्बाद कर देगा। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, लिहाजा नेकी करने के बाद इसकी हिफाजत करनी है। और जब बंदा नेकी की हिफाजत करता है, इसकी हिफाजत के नतीजे में मेरे भाइयों, जो गुनाह बंदे से ना चाहते हुए हो जाते हैं, ना चाहते हुए गुनाह कौन से हैं, उसकी क्या मिसाल है? ना चाहते हुए गुनाह कैसे हो जाते हैं? ये कैसे मुमकिन है? नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कोई बंदा दरिया से गुजरे तो ये कैसे मुमकिन है कि इसके जिस्म को पानी ना लगे? सवालिया तौर पर सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अजमाइन के सामने बात रखी, क्या जवाब देते हैं? ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इसी तरह दुनिया में आने वाला हर शख्स गुनाह की जद में आ जाता है। ना चाहते हुए जो गुनाह हो जाते हैं, ये अल्लाह का फजल है, इन गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन ये गुनाह कौन से? जिनको बगैर माफी मांगे वो माफ करता है, ये सगीरा गुनाह है मेरे भाई। सगीरा गुनाह किसे कहते हैं? जिन गुनाहों पर अल्लाह ताला उसके रसूल ने मना तो किया है, मगर उस पर कोई सजा या वाइद नहीं फरमाई। लेकिन सगीरा गुनाह भाई मेरे भाइयों, इस नुक्ते को भी ज़हन रखिए, नुक्ता समझ लीजिए। सगीरा गुनाह जिद की वजह से, हट दर्मी की वजह से, तकब्बर की वजह से, ये भी कबायर के अंदर शामिल हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम एक शख्स को देखते हैं जो उल्टे हाथ से खा रहा था। आपने उसको कहा, भाई दाएं हाथ से खाओ। तकब्बर के साथ क्या कहता है? मैं नहीं खा सकता दाएं हाथ के साथ। हुआ क्या फिर मेरे भाइयों? अल्लाह ताला ने उसका हाथ ही मफलूज कर दिया, दोबारा वो दाएं हाथ से कोई काम नहीं कर सका। सगीरा गुनाह तकब्बर की वजह से, हट दर्मी की वजह से, अनाज की वजह से मेरे भाइयों ये कबाइर के अंदर शामिल हो जाते हैं। सरजद होने वाले गुनाह खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मुआफ फरमा देती है। कैसे? नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा वजू करता है और अपना चेहरा धोता है, तो पानी का आखिरी कतरा जब वो नीचे बहता है, चेहरे के साथ आंखों से जो उसने गुनाह देखे किए, वो सारे पानी के आखिरी कतरे के साथ वो बह जाते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब वो अपने हाथों को धोता है तो पानी के आखिरी कतरे के साथ वो सारे गुनाह उसके हाथों से जो किए हुए थे, उसने जो गुनाह, वो पानी के आखिरी कतरे के साथ बह जाते हैं। और जब बंदा अपने पांव को धोता है तो पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह जो इसके पैरों से चल के इसने किए थे, वो सारे के सारे गुनाह पानी के आखिरी कतरे के साथ वो बह जाते हैं। मेरे भाइयों, लेकिन रहा मसला कबीरा गुनाहों का। कबीरा गुनाह
गैर इरादी तौर पर सरजद नहीं होते। कबीरा गुनाह बाकायदा तौर पर इनके लिए प्लानिंग की जाती है, मनसूबाबंदी की जाती है, प्लान बनाया जाता है, किस तरह चोरी करनी है, किस तरह डकैती करनी है, किस तरह किसी का खून बहाना है, किस तरह ज़िना करना है, पूरा एक प्लान बनाया जाता है। उस प्लान की वजह से वो अपने जुर्म को सरजद का उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है। मेरे भाइयों, कबायर गुनाह किसको कहते हैं, क्या पहचान है कबायर की? मेरे भाइयों, कबीरा गुनाह जिस गुनाह पर अल्लाह ताला ने हादियां ताज़ीर मुकर्रर की है, कबायर गुनाह है, कबीरा गुनाह है। चोरी कबीरा गुनाह है, डकैती ज़िना की तोहमत कबीरा गुनाह है, कत्ल करना, जमीन पर फसाद बर्पा करना कबीरा गुनाह है। मेरे भाइयों, दूसरा नुक्ता वो क्या है? कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? जिस गुनाह पर जहन्नम की वाईद आई हो, कबीरा गुनाह है। मेरे भाइयों, धोखा देना कबीरा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरेब और धोखा ये जहन्नम में है, ये आग के अंदर है। इसी तरह मेरे भाइयों, तीसरा नुक्ता, कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? जिस पर जहन्नम से, जन्नत से महरूमी का ऐलान कर दिया गया हो कि ये कबीरा गुनाह है। मेरे भाइयों, कता रहमी करना जन्नत से महरूमी है, कबीरा गुनाह है। इसी तरह मेरे भाइयों, जिस गुनाह पर कता तअल्लुकी की वाईद आई हो, कबीरा गुनाह है। मेरे भाइयों, औरत को अपने शोहर के साथ उसको भड़काना कि तुम्हारा शोहर ऐसा है वैसा है, इसी तरह गुलाम को अपने मालिक के खिलाफ भड़काना, मेरे भाइयों, कता तअल्लुकी है। तो अल्लाह को खत्म करने वाला ये अमल है, मेरे भाइयों, कबीरा गुनाह है। इसी तरह जिस गुनाह के ऊपर लानत की वाईद आई हो, कबीरा गुनाह है। मेरे भाइयों, गैर अल्लाह के लिए ज़िबा करना लानती फेल है। जमीन के निशानात बदलना लानती फेल है। अपनी जमीन को बढ़ाना, निशानात को बदल देना, आगे पीछे कर देना, कभी ये लानती फेल है, कबीरा गुनाह है। अंधे को रास्ते से भड़काना लानती फेल है, कबीरा गुनाह है। वालिदैन को गाली देना लानती फेल है। मेरे भाइयों, जानवरों से बदफेली करना लानती फेल है। कौमे लूत वाला अमल करना लानती फेल है। रिश्वत देने वाला लानती फेल है, कबीरा गुनाह है। इसमें मेरे भाइयों, एक नुक्ता मैंने वाज़िया करना है, वो क्या है? वालिदैन को गाली देने वाला लानती। मेरे भाइयों, वालिदैन को कौन गाली देता है? कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली नहीं देता। लेकिन यहां पर हदीस में है कि वालिदैन को गाली देने वाला लानती है। नबी अलैहिस्सलाम को दूसरे फरमान की तरफ जाएं तो हमें समझ आ जाएगी कि ये लानती फेल कैसे है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, कौन ऐसा शख्स है जो अपने वालिदैन को गाली देता है? आपने फरमाया, जब तुम किसी के वालिदैन को गाली दोगे, वो जवाबन तुम्हारे वालिदैन को गाली देगा। ये है मेरे भाइयों मकसद कि अपने वालिदैन को गाली देने का सबब बनना, जब अपने वालिदैन को गाली देना। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम? आपने फरमाया ये लानती फेल है, और लानती फेल कबायर गुनाह में से है मेरे भाई। अल्लाह अकबर। इसी तरह जिस गुनाह के ऊपर अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार हुआ हो, वो कबीरा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 3 आदमी ऐसे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उनसे कलाम नहीं करेगा, उन पर नजर रहमत नहीं करेगा, उन्हें पाक नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये 3 आदमी कौन है मेरे भाइयों? जिनके बारे में अल्लाह ताला अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। अपने मुआशरे के अंदर नजर दौड़ा के देख लें, ये 3 आदमी कौन हैं? कहीं हम भी उनके अंदर शामिल तो नहीं? बज़ाहिर ये गुनाह मामूली हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नाराजगी का ये सबब है। मेरे भाइयों, पहला इंसान कौन है? आजार बन को टखनों से नीचे रखने वाला, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तहमर, पैंट, पजामा, धोती, कोई भी चीज का नाम ले लें जो मेरे भाइयों सदर को ढांकती है, वो टखनों से अगर नीचे है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। दूसरा इंसान कौन सा है मेरे भाइयों? नेकी करके एहसान जताने वाला। जाइए अपने अपने खानदानों के अंदर देख लीजिए, अगर किसी ने कोई नेकी की होगी तो मेरे भाइयों कहीं ना कहीं वो अपनी नेकी को जता देगा।
और इसी तरह तीसरा आदमी कौन है? कसम खाकर अपने माल को फरोख्त करने वाला, झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला, यह भी अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब है। इसी तरह मेरे भाइयों आगे चलिए, जिस गुनाह पर हलाकत और बर्बादी की वाईद आई हो, मेरे भाइयों ये कबीरा गुनाह है। हलाकत और बर्बादी, कुरान पढ़िए आपको समझ आएगा कि मेरे भाइयों हलाकत और बर्बादी किस पर आई है। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिन लुमाज़ा, हलाकत है उस शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह बुराई करता है और पीठ के पीछे बुराई करता है। मेरे भाइयों हमें हुक्म क्या है? किसी शख्स के अंदर कोई बुराई है, उसको तन्हाई के अंदर समझाया जाए, लोगों के सामने उसकी तशहीर ना की जाए। मुंह दर मुंह बुराई करना क्या मतलब है? लोगों के सामने किसी आदमी की इज्जत को उछालना, फलां शख्स ऐसा है, फलां शख्स के अंदर ये बुराई है, फलां शख्स के अंदर ये बुराई है, लेकिन जब वो सामने आता है उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसकी बुराई उस वक्त उसको नहीं बताई जाती, लेकिन जब वो नहीं होता उसकी इज्जत की धजकियां उड़ाई जाती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों इसी तरह जिस गुनाह के ऊपर कुफर की वाईद आई हो वो भी कबीरा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों में दो बातें ऐसे हैं जो कुफर हैं। ये दो बातें कौन सी हैं? नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हसब नसब के ऊपर ताना देना, मेरा खानदान आला तेरा खानदान नीच घटिया, इस तरह के जुमले किसी को उसकी कौम का, उसकी जात का, उसको ताना देना, नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? यह कुफर है। और इसी तरह मेरे भाइयों मैयत के ऊपर लोहा करना यह भी कुफर है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों कबीरा गुनाहों का मुकम्मल तारुफ एक ही मजलिस में मुमकिन नहीं, चंद आपके सामने रखे हैं, लेकिन कबीरा गुनाहों की नहूसत किस कदर है, इसका इर्तिकाब से मेरे भाइयों बंदा उसके साथ होता क्या है? उसके साथ होता यह है मेरे भाई, वो ईमान से हाथ धो बैठता है। कबीरा गुनाह में जो आदमी मुलव्वस हो जाता है, इर्तिकाब कर बैठता है, ईमान से हाथ खाली हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ज़ना करने वाला जब ज़ना करता है ईमान गया उसका, चोरी करने वाला जब चोरी करता है ईमान निकल जाता है, शराब पीने वाला जब शराब पीता है ईमान निकल जाता है, खयानत करने वाला जब खयानत करता है ईमान गया उसका, और इसी तरह कदर करने वाला जब किसी का नाहक कदर करता है ईमान से हाथ धो बैठता है। मेरे भाइयों अल्लाह अकबर। हम अपने मुआशरे में ये चीजें देखने को, सुनने को देखते हैं, सुनते भी हैं। क्या फलां इलाके के अंदर इतने लोग जहरीली शराब पीने से हलाक हो गए। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? शराब पीने वाला जब शराब पीता है ईमान से हाथ धो बैठता है, ईमान उसका निकल जाता है। अब देखिए मेरे भाई, ये अमल करते हुए, चोरी करते हुए, शराब पीते हुए, शराब के अंदर धुत था, मेरे भाइयों मलकल मौत आ गया, रूह कब्ज कर ली, दुराने इसके गुनाह के, मेरे भाइयों उसकी मौत हो गई, ज़िना करते हुए मौत हो गई, चोरी करते हुए मौत हो गई। लोग देखिए डकैती चोरी करने के जाते हैं, जवाबी जब कार्रवाई होती है घर वाले उठ जाते हैं, फायरिंग का तबादला होता है, चोर डकैत भी मारे जाते हैं, घर वाले भी मारे जाते हैं। अगर ये चोरी करते हुए, डकैती करते हुए ये शख्स मारा जाएगा, ईमान तो इसका निकल गया। अब ये देखें इसकी हालत क्या होगी मेरे भाई, किस हालत के अंदर ये मर रहा है, शराब पीकर ये मर रहा है, किस हालत में मर रहा है, ईमान से खाली है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों एक हदीस आपके सामने रखता हूं, जब ईमान बंदे का निकल जाता है तो उसका हालत क्या होती है। मैदान अराफात में एक शख्स ऊंटनी पर सवार है, नबी अलैहिस्सलाम के करीब खड़ा हुआ है, रकाब के अंदर उसके पांव है। अब हदीस के अंदर ये चीज नहीं है, वो ऊंटनी से नीचे गिरता है, उसको चक्कर आ जाता है, उसको ऊंटनी गिरा देती है,
जैसे भी है, वो ऊंटनी से नीचे गिरता है, रकाब के अंदर उसके पांव हैं, एक पांव उसका रकाब के अंदर फंसा हुआ है, दूसरा निकल जाता है, गर्दन के बाद वो नीचे गिरता है, गर्दन टूट जाती है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब देखिए, हालत एहराम के अंदर है ये शख्स, खड़ा कहां है? नबी अलैहिस्सलाम के पास है, मैदान अराफात के अंदर, एहराम की हालत पर, मजलस, बेहतरीन मजलस, वहां पर खड़ा है, मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं? इस मरने वाले को बेरी के पत्तों के साथ, बेरी पानी और बेरी के पत्तों के साथ इसको मिलाकर इसको गुस्ल दिया जाए, और एहराम की जो इसकी जो चादरें हैं, इसी को इसका कफन बना दिया जाए। लेकिन याद रखना, इसको खुशबू ना लगाना और इसका सर भी नंगा रखना, इसका सर भी नंगा रखना। क्यों? अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब इसको उठाएगा, ये लब्बैक कहता हुआ उठेगा। जिस हालत के अंदर बंदे की मौत होगी, उसी हालत के अंदर क़यामत के दिन ये बंदा उठेगा। मेरे मुसलमान भाइयों, लम्हा फिक्रिया है, बुराई करते हुए बंदे की मौत हो गई, बुराई की हालत में उठाया जाएगा, नेकी करते हुए उसकी मौत होगी, नेकी की हालत में उठाया जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें इस बात का गौर फिक्र करना चाहिए कि हमें मौत जब आए तो मेरे भाई हमें नेक अमाल करते हुए आनी चाहिए। लेकिन ये मौत का वक्त किसको पता है कि मेरी मौत कब है? इसका मतलब यह है, हर वक्त बुराई से बचना है, हर वक्त नेकी की फिक्र करनी है, और नेकी करने के बाद उसकी हिफाजत करनी है। अल्लाह अकबर। लिहाजा मेरे भाइयों, कबीरा गुनाहों से बचना है, शैतान के हमले की जद से बंदा जब आ जाए, इसका कुफारा दे, तौबा इस्तगफार करे, अगर हकूक का मामला है, हकूक अदा करे, बंदे के हकूक हैं जब बंदों के हकूक अदा करे, और बंदों के रब से भी माफी मांगे और बंदों से भी माफी मांगे। क्योंकि माफी के बगैर, तौबा किए बगैर अगर बंदा मर गया, उसके सारे के सारे नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। कबीरा गुनाह करते हुए बंदा मर गया, तौबा इस्तगफार नहीं किया, मेरे भाई सारे के सारे अमाल उसके बर्बाद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, दुनिया का माल ना हो, वो मुफलिस है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, नहीं, बल्कि मुफलिस वो शख्स है, क़यामत के दिन आएगा, नमाजें लेकर आएगा, रोजे लेकर आएगा, ज़कात हज लेकर आएगा, नेकियों को ढेर लेकर आएगा, दूसरी तरफ मदई खड़े होंगे, वो मुदाफना पेश करेंगे रब ताला के सामने, ए अल्लाह ताला, ये शख्स है, इसने मुझे फलां मौके पर गाली दी। दूसरा कहेगा, शख्स, इस शख्स ने मुझे मारा था। तीसरा कहेगा, ए अल्लाह ताला, आज इंसाफ का दिन है, इसने मेरे ऊपर बहतान लगाया, मेरी इज्जत को उछाला। मेरे भाइयों, किसी का इसने माल खाया होगा, ये सारे केस रब ताला के सामने पेश हो रहे हैं। उस वक्त क्या होगा? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, इसकी नेकियां तकसीम कर दो। हाजी साहब की नेकियां तकसीम हो रही हैं, नमाजी साहब की नमाजें तकसीम हो रही हैं, हाजी साहब का हज तकसीम हो रहा है, इसके उम्रे तकसीम हो रहे हैं, लोगों के ऊपर माल खर्च करने वाला, इसके सदकात खैरात इसके तकसीम हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी मामला खत्म नहीं हुआ, इसकी नेकियां खत्म हो गई हैं, लोग बाकी हैं। लोग क्या कहेंगे? अल्लाह, हमारा मामला भी बाकी है। अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? इनकी नेकियां, इन लोगों की नेकियां, इनकी जो बुराइयां हैं, इस शख्स के ऊपर, ये हाजी साहब के कंधे पर रखें, इन लोगों की बुराइयां इसके कंधे पर डालकर इसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। तौबा इस्तगफार किए बगैर अगर कोई शख्स मर गया, सारे के सारे अमाल बर्बाद उस शख्स के, और ठिकाना क्या है मेरे भाइयों? उसका ठिकाना जहन्नम है। ये इस उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स है। दुआ है अल्लाह ताला समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मेरे मुसलमान भाइयों, कबीरा गुनाहों में कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जो खाली गुनाह ही नहीं है। कबीरा गुनाह वो खाली कबीरा गुनाह नहीं है, बल्कि वो उन गुनाहों की वजह से बंदे के नेक अमाल बर्बाद कर देने वाले भी अमल हैं। खतरनाक वो गुनाह है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन गुनाहों के बारे में आगाही आपने फरमाई ताकि आपकी उम्मत इस खतरनाक गुनाहों से बच जाए। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, साबका कौमों के अंदर एक खतरनाक बीमारी है जो अनकरीब मेरी उम्मत के अंदर भी उसको आ जाएगी, मेरी उम्मत को लग जाएगी। वो बीमारी कौन सी है? नबी अलैहिस्सलाम आगाही दे गए, बयान कर दिया। वो बीमारी क्या है? नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो बीमारी हसद की बीमारी है। बुग़्ज़, हसद। हसद किसे कहते हैं? किसी शख्स के पास नेमत हो, उस नेमत के ज़वाल का तमन्ना करनी, इसको हसद कहते हैं। किसी के पास माल है, हसद करने वाला जो हासद है उसको तकलीफ होती है, इस शख्स के पास माल क्यों आया है, इसकी सैलरी क्यों बढ़ गई है, इसको बोनस को मिल गया है, उसको हासद को तकलीफ होती है, इसको माल को मिला है। मेरे भाइयों, किसी के पास ओहदा मिल गया, हासद को तकलीफ होती है, इसको ओहदा क्यों मिला, इसकी प्रमोशन क्यों हो गई, ये हासद है, इसको तकलीफ होती है, ये इस काबिल नहीं है, इसको ओहदा क्यों दिया गया। किसी के पास अच्छी गाड़ी आ गई, सवारी आ गई, हासद को तकलीफ होती है, इसके पास अच्छी सवारी क्यों आ गई। किसी के पास अच्छा घर आ गया, हासद को तकलीफ होती है, कल तक ये किराए पर रुकता था, आज इसके पास बंगला आ गया, इसको तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, ये हासद है। हसद ये ऐसी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है जो बंदे के दिल के ऊपर जाकर लगती है। इस बीमारी की वजह से, इसकी बीमारी लगने की वजह से बंदा ईमान से हाथ धो बैठता है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ईमान और हसद एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकते। मतलब क्या है? अगर किसी इंसान के दिल के अंदर ईमान है, हसद का वहां पर कोई काम नहीं है। और जिस शख्स के अंदर, उसके दिल के अंदर हसद है, वहां अगर ईमान होगा वो निकल जाएगा। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, ये उस तरह है, उस तरह शेव करने वाला उस तरह, ब्लेड उस तरह। क्या फरमाया? ये वो उस तरह है जो बालों को मूंदता है, ये वो उस तरह नहीं है। ये वो उस तरह है जो तुम्हारे दीन को मूंद के रख देता है। मतलब हसद आ गया, सारी की सारियां नेकियां बर्बाद, और किसी को हसद की बीमारी लग गई। ये उस तरह है, पूरे के पूरे दीन के अंदर जो इंसान ने काम किया वो सारे के सारे बर्बाद करके रख देगा। अल्लाह अकबर। हसद की वजह से मेरे भाइयों, हसद की वजह से सबसे पहले अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई है। हसद की वजह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, पैदा किया अपने हाथों से, पूरी की पूरी मखलूक को कहा सजदा करो। इब्लीस ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु। हसद ने मार दिया उसको, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इसको सजदा क्यों करूं। मेरे भाइयों, ये हसद है। अल्लाह ताला की सबसे पहले नाफरमानी की गई हसद की वजह से। इस हसद की वजह से ये इब्लीस को देख ले, नेकोकार था, हर नेकियां का पहाड़ था उसके पास, हसद आ गया, ठिकाना क्या बना? अल्लाह ताला ने उसको धुतकार कर रख दिया और आखिरत के लिए उसके लिए जहन्नम की वईद है, जहन्नम के लिए उसको फेंका गया। ये हसद है मेरे भाई। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील और हाबील, काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल क्यों किया? सूरत माइदा आयत 27 पढ़िए, पूरी एक तफसील मौजूद है। दोनों ने अल्लाह के यहाँ कुर्बानी पेश की। मेरे भाइयों, हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई, काबील की कुर्बानी को रद्द कर दिया गया। काबील ने हसद में आकर भाई को मेरे भाइयों कत्ल कर दिया। हसद की संगीनी, भाई ने भाई को कत्ल किया। कत्ल का नतीजा क्या हुआ मेरे भाइयों? इस जमीन पर जितने भी कत्ल होते रहे,
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस जमीन के ऊपर क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे उस कत्ल का काबिल के हिस्से के अंदर भी वो भी बराबर का हिस्सेदार है। वजह उसने ना हक कत्ल का रास्ता खोला है। लिहाजा मेरे भाइयों, हसन ये गुनाह के साथ खतरनाक बीमारी है, जिसको लग जाए इस मरीज को कत्ल तक पहुंचा देता है। लोगों को ये कत्ल करने पर भी मेरे भाइयों नहीं झिझकता, बात नहीं आता। मेरे भाइयों, यहूदियों को देख ले, मदीने के अंदर आकर इबाद हुए, वजह क्या थी? उनकी किताबों के अंदर मेरे भाइयों इस जगह के पूरी निशानदाही, पूरी निशानियां बताई गई कि आखिरी नबी जो आने वाला है इस सरजमीन के ऊपर आएगा, खजूरों वाली जमीन होगी, ऐसी ऐसी जमीन होगी। मेरे भाइयों, कहां यमन से चलते हैं और मदीना आकर आबाद होते हैं। वजह क्या है? आखिरी नबी का इंतजार कर रहे हैं। जब आखिरी नबी आ गया, आपने नबूवत का ऐलान कर दिया, इनकार कर दिया, हम नहीं मानते। वजह सबब क्या है? जितने भी अंबिया किराम आए, बनु इसहाक से आए। मेरे भाइयों, ये हसद, ये तकब्बर, ये बुग़्ज़ उनको ले डूबा कि आखिरी नबी भी बनु इसहाक से आना था, बनु इस्माइल से क्यों आया? मेरे भाइयों, हसद की वजह से आखिरी नबी का इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये शर्फ का एक मुकाम दिया है। किसी को अल्लाह शर्फ दे, कोई शख्स उसको रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने एक शर्फ दिया है, बनु इस्माइल को आखिरी नबी उनकी नस्ल से, उनके खानदान से, उनकी औलाद से आया। मेरे भाइयों, अपने शर्फ को अपने हाथों से जाते हुए देखकर मेरे भाइयों हसद कर बैठे, इनकार कर बैठे। यही बस नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने पर उतर आए। कादरा ने हमले किए। मेरे भाइयों, गजवा खैबर के अंदर देख लीजिए, भुना हुआ गोश्त जहर आलूदा जहर के अंदर मिलाकर आपके सामने पेश किया गया। आपने जब जुबान का ऊपर रखा, आपको बता दिया गया, गोश्त ने खुद बता दिया मुझे जहर आलूदा किया गया है। साथ में चंद सहाबी थे, नाम कुछ लिखे हुए हैं, मुझे अभी याद नहीं, उनकी शहादत भी हो जाती है। हसद की वजह से अंबिया के कुरान को इन लोगों ने शहीद किया। मेरे भाइयों, ये हसद की बीमारी है, जब लगती है मेरे भाइयों, ये नेकियों को बर्बाद भी करती है और इंसान को कातिल भी बनाती है। अल्लाह अकबर। वक्त काफी हो गया है, अभी दलाइल बहुत सारे बाकी हैं। इस मौजू को लेकर इंशाल्लाह आगे चलेंगे कि ऐसे अमाल जो कबायर के अंदर है, जो इंसान के नेक अमाल को बर्बाद करते हैं, इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज पहला उसका जो सब्जेक्ट था हसद था। अल्लाह ताला हमें हसद जैसी बीमारी से बचा कर रखे। क्यों इतनी खतरनाक है? नेकियां भी बर्बाद, इंसान की नेकियों को भी बर्बाद करता है, जहन्नम के अंदर भी फेंकता है। वक़ाल अल्लाह ताला फिल कुरानिल करीम वल फुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अदा'द-दीन व अजअल हाज़ा बलद आमिना मुतमइन्ना व साइरिल बिलादिल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अस्लिह ज़ात बैनिहिम व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वजअल फ़ी क़ुलूबिहिम ईमान अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अक़िमल हमल जिहाद अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीना फ़ी कुल्लि मकान अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीना फ़ी फ़लस्तीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहू यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।